Hello students, good evening, welcome back. So this is assignment for English Fluency BA program, BCom program, semester 2nd, first year. In this video, you will get the full answer of the assignment question for SOL, NCWeb and DU regular colleges. So first of all, have a look at the format of the assignment. First of all, at the top, at the center, you have to write the assignment and the name of the paper, which is BA program, BCom program, semester 2nd, and then English Fluency paper, name of the paper. Second thing you have to write is your name and roll number. By name I mean your signature and your SOL roll number and your exam roll number. Please do follow SOL guidelines to write proper roll number and check all the details once on your own if you haven't checked till now. And then now let's have a look at the question. So this is question 2. In my previous video I have already described, then in each paper we have 4 questions and out of 4 you have to do 2 questions. So यहाँ पे question number 1 के बीच में भी A और B part थे जिसके बीच में you have to attempt only one, and in question number 2 also you have to attempt only one question out of A and B. So here is an answer for question 2 A part. The question is you recently purchased a mobile phone but it is not working properly. आपका मोबाइल फ़ोन जो आपने नया ख़रीदा है वो सही से काम नहीं कर रहा है. राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैन्युफैक्चरर आस्किंग देम टू रिप्लेस इट विद अ न्यू फ़ोन. अब आपको लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना है. सो इट मीन्स ये फॉर्मल लेटर हुआ. सो हमारा जो फॉर्मेट होगा लेटर का वो भी फॉर्मल लेटर वाला फॉर्मेट होगा. एंड देन you are asking to replace it and get a new mobile phone. Now let's have a look at the format. First of all, I have mentioned the sender's name, then the sender's address and then email ID. यहाँ पे मैंने sender's name लिखा है, बट आप कोई भी fictional name अपनी तरफ से लिख सकते हैं. मे बी राहुल, राज और सिमरन, whatever you want to write. Then there is a fake address. First line of the address is the name, हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर. ये सेंडर का एड्रेस है, यानी कि भेजने वाले का. आप अपना खुद का नाम और खुद का एड्रेस भी लिख सकते हैं. देन ईमेल आईडी. ईमेल आईडी यूजुअली लेटर के फॉर्मेट में इंक्लूडेड हर जगह नहीं होती, बट सिंस नाउअडेज एवरीवन हैज़ एन ईमेल आईडी, सो दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड इट हियर. Then the next thing is we have to write the date. So I have mentioned today's date, which is 3rd of July 2020, and then the name of the company and the address of the company. So I have just mentioned that XYZ Mobile Company, New Friends Market, Delhi, and then the pin code. So that's like a fake address or any address which you know, any local mobile company you can mention. Then the next important thing is to put the subject of the letter. So here the subject of the letter is, informal letters के बीच में हम subject नहीं लिखते, and formal letters के बीच में अगर आप complain या application इस तरह का कोई letter लिख रहे हैं तो it's important to write a subject. So here it is important since it is a complaint letter. So the subject is complaint to the manufacturer to replace a defected mobile phone. Defected खराब mobile phone को replace करने के लिए complaint है हमारी. Now salutation, respected sir or madam, whatever you like. And then in the very first paragraph I have described the detail of the mobile phone and what I am expecting and what is the problem. So in very brief paragraph you describe this. So I have written I have recently purchased an, मैंने मोबाइल का मॉडल नंबर दिया हुआ है. इट्स जस्ट गेस्ट मोबाइल मॉडल नंबर, मॉडल मोबाइल फ़ोन वर्थ 30,000 रुपीज़. सो 30,000 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से डाला है. फ्रॉम योर शॉप, बट आई एम वेरी अपसेट एंड सैड टू इन्फॉर्म यू दैट द सेल फोन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली एट ऑल. सो आपकी टोन जो है वो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, इवन तो आप कंप्लेन कर रहे हैं, बट स्टिल यूज़ प्रॉपर वर्ड्स. इट्स स्क्रीन इज़ ब्लैंक. अब आप प्रॉब्लम के बारे में बताइए. पहले आपने बता दिया कि आपने इतने का फ़ोन लिया था, अब वो ख़राब है, उसकी प्रॉब्लम क्या है. इट्स स्क्रीन इज़ ब्लैंक एंड चार्जिंग केबल इज़ ऑल्सो लूज. I was not expecting this kind of defected product from your reputed company. Earlier I did complain about this at the customer service desk, but they restarted the cell phone and assured me that it was a one-time problem and here I am facing this problem again. So मैंने बताया कि मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, 30,000 का ख़रीदा है, और उसकी प्रॉब्लम क्या है कि स्क्रीन ब्लैंक है और उसकी केबल सही से काम नहीं कर रही है. एंड देन आप अपनी पोलाइट लैंग्वेज में ही उन्हें बोले कि आपने पहले कस्टमर सर्विस पे भी बताया था जब आप मोबाइल ख़रीद रहे थे, बट उन्होंने रीस्टार्ट करके दे दिया और उन्होंने बोला कि सब ठीक हो जाएगा. बिकॉज ऐसा तो होगा नहीं कि आप बिल्कुल पहली बार में ही कंप्लेन लिखेंगे. नाउ डेज वी हैव दिस हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग डायरेक्टली थ्रू मोबाइल फ़ोन, बट लेटर्स जो है वो बहुत ही फॉर्मल माने जाते हैं, आपको इसका रिप्लाई देना ही होता है. सो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा डिटेल में ये चीज़ जो है वो डिस्क्राइब करी गई है. नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ आप बताइए कि अब आपने क्या किया है. सो आई हैव मेंशन दैट आई हैव अटैच द कॉपी ऑफ द बिल रिसिप्ट ऑफ द कैश पेमेंट विद दिस लेटर, कि मैंने बिल की जो कैश पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो इस लेटर के साथ अटैच कर दिया. अब आपको एग्ज़ाम के बीच में वो रिसिप्ट डायरेक्टली अटैच करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस लेटर के बीच में हम लिखते हैं
कि हाँ हम साथ में वो सामान भेज रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर अबाउट द इंटरव्यू, कि आप इंटरव्यू के लिए कवर लेटर लिख रहे हैं, तो अब उसके साथ आप ये बोलेंगे कि हाँ मैंने अपना रिज्यूमे अटैच करा है, लेकिन एक्चुअल में आप आंसर में रिज्यूमे लिख नहीं रहे होते. तो यहाँ पे बस आप लिख दीजिए कि हाँ आपने रिसिप्ट की, बिल या कुछ भी जो भी चीज़ें हैं वो आप साथ में भेज रहे हैं. एंड अब आपकी रिक्वेस्ट क्या है? एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्रॉपर्ली रिप्लेस दिस डिफेक्टेड सेल फोन विद अ न्यू फोन. आपको नया फ़ोन चाहिए इस पुराने फ़ोन को हटा के. एज आई वॉज नॉट एबल टू यूज़ इट प्रॉपर्ली इवन फॉर 1 day, सो आई एम श्योर दैट यू विल हैव नो इशू इन रिप्लेसिंग इट. अब आप बता दीजिए कि ऐसा क्यों होना चाहिए, वो आपको नया फ़ोन क्यों दे दें. आप, मैंने रीज़न दिया है कि मैंने एक भी दिन ये फ़ोन नहीं चलाया, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए इस फ़ोन को रिप्लेस करने के लिए. देन इन द लास्ट पैराग्राफ आई हैव मेंशन दैट व्हाट आई होप, कि मैं क्या होप रखती हूँ, उम्मीद क्या है मुझे आप लोगों से. So I also hope that you will look into this matter and will make sure that no one else will face such issues in future. I have complete faith. अब थोड़ा सा आप पॉजिटिविटी भी दिखा दीजिए, बिकॉज कंप्लेन है इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी बुराई ही करते रहें. थोड़े अच्छे वर्ड सुन के हर किसी को अच्छा लगता है. So I have complete faith in your service and I am expecting a quick delivery of my new mobile phone. एंड देन आप एंडिंग में ये ज़रूर बता दीजिए कि आप भी कॉन्टैक्ट के लिए अवेलेबल हैं, यानी कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, उन्हें लग रहा है कि नहीं हमने डिफेक्टेड नहीं दिया है, कुछ और बात करनी है, तो वो डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट कर सके. सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट. माई डिटेल्स आर इन द बिल रिसिप्ट अटैच. जो बिल रिसिप्ट साथ में अटैच है उसमें मेरी डिटेल्स दी हुई हैं. थैंक यू. एंड देन एट लास्ट, योर्स सिंसियरली, प्लीज़ योर्स, कुछ और मत लिखिए लाइक ग्रेटफुली, थैंकफुली, ऐसा कुछ मत लिखिए. सिंसियरली इज़ द सेफेस्ट थिंग. सो योर सिंसियरली एंड देन सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर, भेजने वाले का नाम और सिग्नेचर. अब एक बात का आप ध्यान दीजिए कि जो स्टार्टिंग में आपने एड्रेस लिखा है, सेंडर एड्रेस, वहाँ पे आप जो नाम लिख रहे हैं प्लीज़ एंडिंग में भी वही नाम लिखिए और वैसे ही सिग्नेचर कीजिए. ऐसा ना हो कि आप सेंडिंग में आपने लेट्स से कि आपने नाम लिख दिया सीमा एंड एंडिंग में आपने अपने नाम की सिग्नेचर कर दिए. तो ऐसा ना हो. अगर आप स्टार्टिंग में अपना नाम लिख रहे हैं तो एंडिंग में भी अपना नाम लिखिए. अगर आप स्टार्टिंग में फिक्शनल नाम लिख रहे हैं तो आप एंडिंग में भी फिक्शनल नाम ही लिखिए. एंड एग्ज़ाम के बीच में ऐसा मत लिखिए कि सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर, कोई नाम ज़रूर लिखिए. ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे बताया है. सो दैट्स इट फॉर दिस आंसर. इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन और क्वेरी और एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद अस, प्लीज़ डू लेट अस नो in the comment section, and please like and subscribe our videos and channel. We are genuinely uploading the genuine content and I hope all of you will support us equally. Thank you to everyone who have already supported us. Thank you so much for this video.